नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू त्यागी टॉक्स। त्यागी हूँ, मेरठ का हूँ और खुश हूँ। आज का टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड द रीज़न कि मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है इज़, मैं हमेशा कहता हूँ दैट आई एम नॉट अ प्रीचर। ना मैं इतना ज्ञानी हूँ कि मैं लेक्चर्स दूंगा कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं लाइफ में, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड व्हाट डू आई मीन बाय प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मैं आपको फ्यूचर में क्या होता है, लाइव एग्जाम्पल्स, हम क्या कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है फॉर देम टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। But before that, as the tradition goes, I'll play the Tyagi anthem to you. Here it goes. Welcome to Tyagi Talks. Hello everybody. Good day to you. Some live, some die, some lose, sit and cry. Some love eating chicken fry, but Tyagi talks. Some brew and sigh, and afraid to even try. Some wither away and die, but Tyagi talks. Some walk away with their head held high. Some sit and wonder why. Some look at you and don't say hi, but Tyagi talks. Some live, some die, some lose, sit and cry. Some love eating chicken fry, But Tyagi talks, and Tyagi talks. Alright, thank you. So as I said, the topic today, parents and grandparents. It's very important that small children look at their grandparents while they are growing up. Knowingly or unknowingly, they play a very very important role, and I'll tell you things that you must have never thought of. What do grandparents and parents do? But before I start, I want to give you some live examples of how do we think. Nowadays it is all nuclear family. Joint families are slowly moving out. Parents do not want to come and stay with children. Either the houses have shrunk या दिल छोटे हो गए हैं। बहुत जरूरी है कि मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स stay with people. Parents, for me, my parents are best in the world, and I'm sure this is the thing with everybody. हर बंदा यही कहता है कि my parents are the best. I will give you reasoning. I will tell you how things happen. But let's first understand. And I'll give you a life story, and then don't judge me because of the story. I think हर आदमी मेरी सिचुएशन पे होता आइदर यही सोचता या कर रहा होता है कि मैं अभी क्या करूं। माई मदर इज़ अ लिवर सिरोसिस पेशेंट। वो लिवर सिरोसिस के 3rd स्टेज पे हैं, और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स आप भाई मान लो, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी। हिज नेफ्यू वॉज गेटिंग मैरिड, एंड नेफ्यू इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू अस। हमारा ना घर का रिश्ता है। 1 महीने पहले टिकट्स बुक किए, नागपुर जाना था, सब तैयारी शुरू हो गई, बच्चे बीवी एवरीबडी हैप्पी। माई मदर सडनली फॉल सिक, and that is 5 days before we have to go for the wedding. मेरी मॉम का सोडियम कम हो गया, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया तब वो सोच रहे थे कि कितने दिन लगेंगे उनको टू कम आउट ऑफ द हॉस्पिटल। मैं रोज डॉक्टर से पूछता था एज द डे वॉज नियरिंग कि डॉक्टर साहब हो जाएगा इस तारीख को, डॉक्टर साहब हो जाएगा इस तारीख को। अंदर
कि मुझे जाना है, not realizing that the person whom I love the most is here. 2 days to go and she's still in the hospital. So I asked the doctor, he says नहीं हो सकता. It will take 2 days for her to get discharged. I said यार चलो, I told my family you carry on. तो वहाँ भी बहुत ही फोर्स करने के बाद this guys carried on the next day and I was in the hospital with my mom. My mom was very pale and weak in the hospital only. बहुत ज़्यादा pale और weak लग रही थी. वो रात मैं मॉम के साथ था and I booked my tickets for next day. I asked the doctor and he said next day मैं कर दूंगा. जिस दिन हमें जाना था वो दिन वो डिस्चार्ज हो रही थी दोपहर को. I got her home and the next day I had the ticket at about 5:15 in the morning. So in this entire process, ये पूरे प्रोसेस में मेरे दिमाग में 2-3 बार ये आई कि एक दिन की बात थी यार, मॉम, I would have gone and my friends are teasing me with photographs कि ये देखो हम travel कर रहे हैं, ये देखो कितनी अच्छी जगह है. And that night, that afternoon, I get mom home and we go to stay at my sister's place. The next day, my flight is at 5:15 in the morning. We had to go for the wedding. And I tell my sister, in a very thing, don't get up. I give her all the promises कि पक्का promise मत उठना और कुछ चाय वाय की जरूरत नहीं, मैं पी लूँगा. 3:30 I get up, 3:30 बजे सुबह. I look at my mom, she's sleeping. She's still looking very pale and weak. I said, चल 3 दिन की बात है. Let me quickly go and come. I get ready. I'm going to book the cab. And the reason I'm telling you the story, I'll tell you. जैसे मैंने कैब बुक की, देखा एक ग्लास चाय का और एक सैंडविच रखी है टेबल पे. I was very annoyed. यार poor sister 3 बजे उठी, ये किया. And I told her promise मत उठना. She said हाँ नहीं उठूंगी भैया. I see my mom. She got up and she made the stuff. She knew I would travel and I travel another 2 hours from Nagpur. Boss, these are parents. The importance of parents is critical. Parents fight with you. Parents shout at you. Parents sometimes are most notorious. पीछे एक बुक है. My daughter gifted the book to me called The Terrorist. Times I am like a terrorist to them, yeah. But that's the growing up process. Every time when you guys are at work, people respect you, people honor you, people look at with you with a lot of thinking that this person is going to help me, ये मुझे help करेगा. But that's only 50%, my friends. The rest 50% is your parents. Your parents are at home. Your mother is working the whole day. Your mother is sitting the whole day, that in the evening when you come back, she'll get those 5 minutes in 24 hours. 5 minutes is that she wants from us, yeah? और हम वो नहीं दे पाते. So when your team respects you, your team honors you, your team believes in you, that's only 50%. 50% are your parents. Is when you're lonely, after that your parents are with you. When you're in pain, your parents are with you. When you're feeling miserable, your parents are with you. So if parents are screaming, और अगर माँ बाप चिल्ला रहे हैं, अगर किसी चीज़ को टोक रहे हैं, that doesn't mean they are bad. इसका मतलब यह है they care. एक पुरानी हिंदी कहावत है and very old saying which says भगवान हर जगह नहीं होता, इसलिए उसने माँ बनाई. I completely agree with this. Mothers are mothers. But at the same time, जब मैं ये कह रहा हूँ, पीछे खड़ा हुआ जो आदमी आप लोगों के लिए दिन रात काम कर रहा है, who hides his tears, who hides his fears, who hides himself at difficult times, fighting for himself to come out of it, is your father who is standing out there.
आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर, ना मैं दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मैं ये कहना चाहता हूँ माँ इज़ बेटर और पिताजी इज़ बेटर। दे आर वन, इट्स फैमिली, इट्स योर मदर, इट्स योर फादर, इट्स योर ब्रदर, इट्स योर सिस्टर। एनी वे यू गो इन द वर्ल्ड, फैमिली फैमिली होती है। दोस्त, अगर आप जितना टाइम अपने दोस्तों के साथ अपने ऑफिस में स्पेंड करते हैं, उसका 5% टाइम या 2% टाइम अगर आप अपने माता पिता के साथ बैठ के उनसे बात कर सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग इन फ्यूचर, दे आर जस्ट गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। इट विल टेक यू ओनली 2 minutes. Now coming to grandparents. So for everybody, and the reason that I'm talking about parents and grandparents is nowadays जिनके grandparents रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, आई थिंक दे आर द मोस्ट लकीएस्ट फैमिली। जाने अनजाने में दे टीच यू सो मैनी थिंग्स कि यू वोंट इवन रियलाइज। आई टेल यू अबाउट 4-5 चीज़ें जो ग्रैंड पेरेंट्स डू, जो आपको कभी रियलाइज भी नहीं होगा, माई गॉड कि ऐसे भी हो रहा है। एंड दिस इज ऑल एग्जाम्पल्स। So here are your parents, as I said, and what importance of parents accept the money. That is a bringing up process. जब हम बड़े हो रहे हैं, खर्चा करेंगे, बड़े होंगे, हर चीज़ होता है। So don't compare parents with money, कभी नहीं। अब है ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स को अगर आप आपके बच्चे देखते हैं, वो ये देख रहे हैं कि मेरे दादा दादी नाना नानी को दर्द हो रहा है, उनको उठते दर्द हो रहा है, उनको बैठते दर्द हो रहा है, उनको खाना खाते प्रॉब्लम हो रही है। ओल्ड पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स आर लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की तरह। जैसे छोटे बच्चों को हम प्यार से बैठा के खाना खिलाते हैं, वैसे माँ बाप को खिलाना चाहिए। आई एम नॉट द फॉर्चुनेट वन दैट माई पेरेंट्स स्टे विद मी। My children were not fortunate that their grandparents stayed with them. But जब एक छोटा बच्चा अपने दादा दादी को दर्द में उठते बैठते खाते हुए दर्द, सोना कम, नींद में प्रॉब्लम, वो बच्चा अननोइंगली दर्द को सहने की आदत बना लेता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दर्द सहने की आदत नहीं डालेंगे। बट आपके अगर घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आपके छोटे बच्चे उनको देखते हैं, उनको पता है कि ओल्ड एज में दर्द इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। और जब आप उस एज में आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट एंड अ न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली के जो छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक रियलाइज, उन्हें देखा हुआ है, जैसे हाँ मेरे जो मदर फादर हैं बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। एंड दे रियलाइज बिकॉज वो पेन के साथ सिंक होते हैं। यही न्यूक्लियर फैमिली जो मेट्रोज में हैं, उनको लगता है माँ बाप कल तो ठीक से बैठे थे यार, आज एक काम करने को क्या नहीं उठ पा रहे, मुझे कह रहे पाँव में दर्द हो रहा है, आके ये ले जाओ। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे दर्द होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कभी कभी रो देते हैं, आँख से आंसू आ जाते हैं, इतना दर्द हो रहा है। यही बच्चों को इमोशनल वेलबींग लेके आता है। They realize the pain. Third very important चीज़ें जो ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं, then I list down a lot of things, or rather I have listed down 5 things which I will read through of what is so important of grandparents being there. ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स के साथ अटैच करते हैं। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। आपकी माँ, आपके पिताजी कभी भी आपको नहीं बोलेंगे मैं कॉलेज और छोटे बचपन में हीरो था। कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैंने ये शैतानी की। कभी ये नहीं बोलेंगे कि बचपन में मैं ये सब करता था। पर आपके दादा दादी या नाना नानी हु हैव स्टेड विद योर पेरेंट्स, हैव सीन योर पेरेंट्स ग्रो, विल टेल दिस चिल्ड्रन एवरीथिंग कि जैसे तू करता है, योर फादर वॉज अ रेप्लिका, तू अपने पिताजी के डुप्लीकेट है।
वो भी इतनी मार खा के आता था, वो भी इतनी शैतानी करता था। सडनली क्या होता है कि जो बच्चे और मदर फादर के बीच में गैप था, ग्रैंड पेरेंट्स फिल दैट गैप। दे गेट द ग्रैंड चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर। वो इतना सिंक क्रिएट करते हैं। सडनली मेरा बेटा जो लगता था यार ये इतना खड़ूस है, एंड आई टेल यू व्हाई आई एम स्माइलिंग ऑल्सो। जब मूवी आई थी कि एक पिक्चर खड़ूस साला, जैसे ही पिक्चर आई मेरे बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे, नहीं रियलाइज कि वो मुझे बोलना चाहते हैं। और स्पेशली वो जो मूवी थी जहाँ वो कहते हैं ना कि माय फादर, वो गाना है कि पापा सेहत के लिए हानिकारक है। मैंने वो गाना बजता था, माय चिल्ड्रन यूज्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम बढ़ा देते थे, नहीं टू स्माइल। मैं समझ रहा हूँ किसके लिए, बट आई नेवर गेव अप बिकॉज फ्यूचर है, इनका फ्यूचर बनाना, यू जस्ट कैन लीव देम अलोन। सो योर ग्रैंड पेरेंट्स क्रिएट दैट सिंक between the grandchildren and their children. Look at the important role that grandparents play. They play the role of the father and mother to their children, and they play the role of father and mother to their children's children. मैं आपको एक और लाइफ स्टोरी बताता हूँ एंड हाउ आई कुड मेक दैट डिफरेंस। मेरे डैड के एक फ्रेंड थे, वो कॉलेज में टुगेदर थे, हॉस्टल में टुगेदर थे। व्हेन दे गॉट मैरिड दे मेट आफ्टर अबाउट 15 years. मेरे बच्चे छोटे छोटे बस सिटिंग एट मी व्हेन दे केम। ही वॉज फ्रॉम कानपुर, सो ही केम एंड टोल्ड अबाउट दादाजी कि दादाजी क्या करते थे। माई चिल्ड्रन वॉज सो इंटरेस्टेड, छोटे बच्चे एट दैट टाइम वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो वॉट देयर दादा वॉज टिपिकली. So if they were interested to know what their dada used to do when he was small, think how inquisitive were they to listen कि उनके father mother क्या करते थे. So grandparents knowingly or unknowingly sync their grandchildren to their children. Very important for a family that unites. बहुत ज़रूरी है उस फैमिली के लिए जो साथ रह के बड़े होते हैं. उल्टा, when they see their mother or their father screaming and shouting on their grandparents, you'll always see, आप हमेशा नोट करना अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, सबसे उस दिन जो चुपचाप और गुमसुम बैठते हैं वो हैं छोटे बच्चे, बिकॉज उनका कनेक्ट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इज नेक्स्ट लेवल. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू हैव अ बैड डे, अगर आपको बहुत बुरा दिन गया ऑफिस में और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बहुत बुरा दिन है, सिट डाउन आउटसाइड योर हाउस फॉर हाफ एन आवर, फिर अंदर जाना. डोंट मेक द हैबिट ऑफ शाउटिंग ऑन योर मदर एंड फादर. जब ग्रैंड चिल्ड्रन ये देखते हैं, दे थिंक इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस कि जब गुस्सा है, जब चीज़ अच्छी नहीं जा रही, अपने माँ बाप पे चिल्लाओ. डोंट डू दैट. सो grandparents knit the family together. I will give you instances now where, and I've taken this down from the net, of how important is it for grandparents to be in the family. The last 5 points that I have for the day, and then if there's any question, yeah Gaurav, thank you so much and good evening to you as well, and thank you everybody for joining in. Grandparents teach their children how to read. मेरी मम्मी हमेशा सरिता पढ़ती हैं. So जब हम उनके घर जाते हैं, my children read because my mother is reading. So grandparents make your children read, which is one of the best things to do right now. You know why? It increases vocabulary. आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करता है. चाहे वो हिंदी पढ़ लो या इंग्लिश पढ़ लो. आज के ज़माने में ऑफकोर्स बच्चे सिर्फ इंग्लिश और ई बुक्स और ये सब आ रहे हैं. हिंदी भी पढ़ो, बहुत ज़रूरी है. हम गोवा में रहे हैं, गोवा में पले बड़े हैं. माई हिंदी इज एब्सोल्युटली वीक, बहुत कमज़ोर हिंदी.
बट आई मेक अ हैबिट, जब मेरी वाइफ किताब पढ़ रही होती है, माई वाइफ लव्स प्रेमचंद, मैं भी एक बुक उठा के पढ़ लेता हूँ. दिस हैबिट इज कम फ्रॉम हर ग्रैंड पेरेंट्स. दे यूज्ड टू रीड इन फ्रंट ऑफ हर, सो शी हैज पिक्ड अप दिस रीडिंग. हर वोकैबुलरी इन हिंदी इज एक्सट्रीमली गुड. So I'm giving you live examples so you can connect. So they help the children read. Second, they help the grandchildren get into something apart from studies. जो स्ट्रेस बस्टर है, वो गार्डनिंग करते हैं, वो बुनाई करते हैं, वो कुकिंग कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए मनपसंद हलवा क्या क्या चीज़ें बना रहे होते हैं. एंड टिपिकली थिंग्स जब आजकल के बच्चे नहीं देख पाते, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स कभी खड़े होकर पिज़्ज़ा नहीं बनाएंगे, कभी बर्गर्स नहीं बनाएंगे, कभी टॉर्टिलाज नहीं बनाएंगे. वो जब बनाएंगे, वो बनाएंगे चीज़ें, हलवा, पूरी, सब्जी. और बच्चे जब ये देखते हैं, दे आर सो प्लीज, दे आर सो हैप्पी. बुनाई, छोटे छोटे बच्चे बैठ के अपने दादा दादा के साथ बुनाई सीखते हैं. क्यों सीखते हैं? दे मेक द चिल्ड्रन गेट इन टू additional stuff rather than studies, which is a stress buster for children. चिल्ड्रनों को स्ट्रेस नहीं होता है, छोटे बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता है जिनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ होते हैं. there's a study in Harvard which says कि जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं फैमिली में और छोटे बच्चे उनको देख के बड़े होते हैं, उनके स्ट्रेस लेवल्स आर 25% लोअर देन इन अ न्यूक्लियर फैमिली. आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टडी. वेरी क्विकली, थर्ड पॉइंट, आपके बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वो वैल्यू सिखाते हैं. आजकल के ज़माने है ना, अंडरस्टैंड यार, घर महंगे हो गए हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव. एक बंदे की सैलरी पे घर नहीं चलता. यू हैव टू गो आउट, एवरीबडी हैज़ टू वर्क इफ यू नीड टू हैव अ हेल्दी एंड अ गुड लाइफ स्टाइल. घर पे बैठे बैठे दे टीच योर चिल्ड्रन वैल्यूज. इन द लॉन्ग रन, जब एजुकेशन हेल्प नहीं करता, वैल्यूज हेल्प करती है. और ये शिक्षा वैल्यूज की ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आती है. बड़ों का आदर करना, क्या बोलना, हाउ टू रिएक्ट इन सिचुएशंस, वो अपने दादा दादी को देखते हैं और वो वैल्यूज इनबिल्ट होते हैं. आई रिमेंबर, मेरी नानी अगर मैं नहाता नहीं था सुबह, रामायण देखने के लिए नहीं बैठाती थी मुझे. एंड दैट टू व्हेन वी वर सिटिंग समवेयर एल्स. सो थिंक ऑफ इट यार, उस ज़माने में अगर मैं नहाया के नहीं आता था, मेरी ग्रैंडमदर, नानी मुझे रामायण नहीं देखने जाती थी. वैल्यूज, आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट टेकिंग रामायण एज एन एग्जाम्पल हियर प्लीज. इट लेट इट बी एनी अदर धार्मिक सीरियल्स. दे टीच चिल्ड्रन मैनर्स. ग्रैंड पेरेंट्स टोकते हैं, छोटे बच्चों को कहते हैं पाँव छुओ, बड़े हैं आपके. कभी नोटिस किया है? दे टीच यू मैनर्स. एंड दिस मैनर्स, पाँव छूना, आई एम नॉट सेइंग जो आदमी पाँव छूता है ही इज़ वेरी वेरी मैनरफुल, वेरी, बट येस, इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट. बहुत ज़रूरी है कि यू रिस्पेक्ट योर सराउंडिंग्स, यू रिस्पेक्ट योर नेबर्स, you respect your parents' friends, you respect your friends, and you respect your grandparents' friends. And as the last that I've told you, and the last point that I have for today before I close the session, very important, they get the children close to their parents. There's a study on this also, that nowadays, in this competitive world, the children are fighting amongst themselves to score a point. हर आदमी को ना एक पॉइंट स्कोर करना होता है और दिखाना होता है कि आई एम द बेस्ट. यह द ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स की अच्छाई, कभी भी ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की बुराई नहीं सुनाएंगे. अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को हमेशा अच्छी चीज़ें सुनाएंगे कि बेटा ऐसे मत करो, तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत की है यहाँ पहुँचने के लिए, तुम्हारी मम्मी इतना काम करती है. सडनली द क्लोजनेस एंड द रिस्पेक्ट फॉर you as a parent, for your children, in the eyes of your children, goes to the next level. They are extremely happy. आज मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक बहुत अच्छी कहावत लिखी थी, विच आई फील इज सो ट्रू.
And I really loved it. That when you love a person, love him so much that when he hurts you, he is the person feeling miserable because आपके face पे एक smile है. I've always said a smile and a laugh or a person who is happy is the best guy because he knows how to fight out in situations. His health is to the next level and he is the person who builds his own way. So my last closing line before I close the session is दोस्तों, please respect your parents. उन बच्चों के लिए who will watch this session later, respect your parents, respect your grandparents. Grandparents are a boon. And जिनके grandparents जिनके साथ रह रहे हैं बच्चों, be with them. You will only get learnings from your parents and grandparents and nothing else. गुस्सा होना बहुत ज़रूरी है, फाइट करना बहुत ज़रूरी है. A family who is only laughing, there's something wrong. Fights होंगी, गुस्सा होगा. But how you come back and unite together and how you get yourself back as a family, this is how it is. So namaskar and thank you for logging on to Tyagi Talks. Have a very good evening. Take care.